We have completed the surface tension, but we will take quick review of this part. Are you ready with pen, pencil and notebook? Okay. See, if two drops of liquid drops on a particular leaf, then they merge together, and if its weight is more than particular, then it drops out. In this chapter we have learned that cohesive force, what is it? It is the force of attraction between two molecules of same substance, and because of this, these drops forms of particular shape. Second term, that is adhesive force. Adhesive force is a force of attraction between two molecules of different substances. This is why any liquid can weight the other solid. Next term, that range of molecular attraction. What is it? You will recall it. It is the maximum distance up to which the intermolecular force of attraction is effective. Now, sphere of influence. The sphere of influence is an imaginary sphere drawn with the radius equal to range of molecular attraction and any molecule as a center. Read the definition. Now, a term which is surface tension. What is it? It is a force per unit length, but which is force? It is tangential force. So we say the tangential force per unit length, on which side does it act? It is acting at right angle on either side of an imaginary line drawn in the free surface of liquid. We have discussed it in detail. Then when does it in equilibrium? What happens if the liquid molecule is in equilibrium condition? So if the molecule is attracted from all sides in a liquid, then it is said to be in equilibrium condition. Friends, there is a surface film term. What is it? It is the layer from free surface side whose thickness equal to molecular range of attraction. So layer of liquid of a thickness equal to molecular range at the free surface of the liquid. Okay. Now, have you recorded this? What is the direction of cohesive force? Yes, this direction is always into the liquid and makes an angle 45 degrees with the free surface. Is this so? Now, adhesive force, its direction is into the solid. So, direction of this adhesive force is perpendicular to the solid surface, and this is what is it into the solid container. Now, why do drop of water or air bubble spherical in shape? We have discussed it. It is because of just for getting equilibrium condition and to keep minimum potential energy. As if we know that everybody in this universe tries to have minimum potential energy, and it will be possible only when the surface area of the liquid drop is minimum, and surface area will be minimum only when the shape is spherical, and therefore this is why liquid drop bubble or air bubble or soap bubble always spherical in shape. See the
answer is given, because every system has a tendency to keep minimum potential energy, and this is possible only when its surface area is minimum, and minimum surface area is possible if the shape of a liquid is spherical. Now, shape of liquid surface at the point of contact. This is what our point of interest. See, if a cohesive force is root 2 times adhesive force, then the resultant of these two forces, Fa and Fc, are forces acting at a point P. Resultant of these two forces is directed vertically downward along the diagonal of this parallelogram. So, if the vertical force acting on point P, and in this case, component of this vertical force along the surface is 0, and therefore this force cannot exert any motion in the molecule which is present in the surface film. So liquid surface becomes horizontal in this case. If cohesive force is less than 1.414, in fact root 2, 1.414 is root 2 times adhesive force, then liquid surface is concave upward. See, Fc less than root 2 times Fa. Let liquid is fed in the container and condition that Fc less than root 2 times Fa. Okay, now at the point of contact, cohesive force is into the liquid and adhesive force is into the solid. Now condition C, Fc less than root 2 times Fa. Now we can form parallelogram formed by two vectors. Then see, this is parallelogram. Now diagonal drawn from the common point. See, this is the resultant vector. So resultant vector will produce some force along the surface, that is component of this force along the surface, and that is why liquid rise up so that it will be in equilibrium condition. हर बार ये सोचना है कि लिक्विड का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्योंकि हमें सबको पता है कि एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स ट्राई टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, and liquid surface will be in equilibrium condition only when applied force is perpendicular to the tangent drawn to liquid surface at that point. अभी अगर ये अपना फोर्स पीछे हम लोग अगर लेकर गए, तो अब ये लिक्विड सरफेस इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर हुआ. दैट इज व्हाई लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकम्स कॉनकेव अपवर्ड. क्या ऐसा ये सरफेस बन गया कि नहीं? कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर से कॉनकेव. इसलिए हम लोग बोलते कि अगर कोहेसिव फोर्स इज लेस देन रूट 2 टाइम्स एडहेसिव फोर्स, then surface of a liquid at the point of contact is concave upward. Okay. In this case angle of contact is acute. चलो हम लोग और दूसरा पॉइंट सोचेंगे. अगर ये फिर से वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ये 1.414 मतलब रूट 2 है. सो इफ कोहेसिव फोर्स इज मोर देन रूट 2 टाइम्स एडहेसिव फोर्स, अब उल्टा होगा. देखो, ये देखो, पहले था लेस देन, अब हुआ ग्रेटर देन. तो हम लोग निकालेंगे फिर कोहेसिव फोर्स डायरेक्टेड इनटू द सॉलिड, सॉरी इनटू द लिक्विड, adhesive force into the solid. Resultant of these two now
along the diagonal of a parallelogram formed by two vectors, तो ये diagonal आ जाएगा लिक्विड के अंदर, and this is what F resultant. अब इस F resultant अगर सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं है तो लिक्विड सरफेस और लिक्विड एडजस्ट itself so that this resultant force and surface of liquid becomes perpendicular to each other, and this is why level of the liquid at the point of contact decreases and tangent drawn to liquid surface is perpendicular to resultant one. Hence resultant force now in this condition will not be able to shift a molecule either in upward or in downward direction. ना नीचे खींच पाएगा ना ऊपर खींच पाएगा, क्योंकि लिक्विड सरफेस और रिजल्टेंट फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। तो क्यों होता है ऊपर या नीचे लिक्विड का सरफेस? सच दैट क्यों होता है? टू बी द सरफेस परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। चलो नाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट। दोस्तों recall the definition, or you may see what the angle between tangent drawn to liquid surface at the point of contact and the solid surface measured from inside is called as angle of contact, but this angle of contact is a solid liquid property. Do you remember I had told you that liquid property and solid property decides the angle of contact. So angle of contact, let tangent drawn. Can you see? Tangent drawn to liquid surface. This is tangent drawn to liquid surface at the point of contact. And now angle between solid surface. See this here. See once again. That angle between tangent drawn to the liquid surface and the solid surface मेजर्ड इनसाइड, अंदर से गिनना है, उसको बोलते हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब अगर प्योर वाटर है, प्योर मतलब म्यूनिसिपालिटीज के नल से जो पानी आता है वो प्योर नहीं, मैं तो बोलूंगा आरओ का भी पानी नहीं, वो प्योर H2O। एंड ग्लास अगर क्लीन हो, कहीं डस्ट नहीं है, ऑयल लगे वाला नहीं है, तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है 0 डिग्री। So you can see by taking pure water in a glass made up of glass. So at that time you will see that water rise up along the surface so that this angle of contact is very small, that is as good as 0 degree. So for the sake of visualization I have shown you here some angle, but in fact it is exactly 0 degree, because that point of contact is to be measured at this point, क्योंकि ये लिक्विड तो ऐसा ऊपर निकले वाला है ना, तो यहाँ अगर मेजर कर नहीं पाएंगे, मतलब 0 डिग्री, वो आइडियल केस है। नाउ अगर एखादा लिक्विड है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, या यहाँ इस केस में तो अगर 0 डिग्री है तो हम बोलते हैं दैट लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। एंड सेम थिंग, सेम फिगर। नाउ फॉर केरोसिन एंड ग्लास पेयर इट इज एक्यूट, मतलब 0 भी नहीं 90 डिग्रीज भी नहीं, तो ये थोड़ा सा दिखने जैसा है, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री। सो इन दिस केस दिस केरोसिन पार्शियली वेट द सॉलिड, ये पार्शियली वेट करता है। और अगर मर्क्यूरी के साथ देखेंगे तो आप लोगों को मर्क्यूरी आपने देखा मर्क्यूरी कभी? अगर देखे होंगे तो आपको ये महसूस हुआ होगा या महसूस करेंगे अभी भी, क्योंकि वो सेंस बिल्कुल यूनिक रहता है। आप लोगों ने उंगली डाली होंगी या कोई पेन डाला होगा, तो उंगली को या अपने स्किन को मर्क्यूरी वेट नहीं करती, एंड दैट इज व्हाई angle of contact we say here obtuse. And one more property, if angle of contact is obtuse,
दैट लिक्विड डजंट वेट द सॉलिड। देखो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बड़ा हुआ, अंदर से, लिक्विड के अंदर से मेजर करना है, so it becomes more than 90 degree, that is why called obtuse angle। now does not weight the solid, ये बात तो मैंने बोल दिया अभी भी। प्रेशर ऑन टू साइड्स ऑफ लिक्विड सरफेस, सी अगर प्रेशर एयर में हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर तो होता ही हमें मालूम है, लिक्विड प्रेशर एच रो जी बैरोमेट्रिक प्रेशर। पर अगर सरफेस है फ्लैट, इसका मतलब है ऊपर का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर सेम है। नाइदर प्रेशर is able to push upside or downside, and that is why if the surface is plane, then pressure difference is equal to 0, no pressure difference present there। okay, do remember this। now pressure on two sides of liquid surface, देखो कैसे, अगर surface है curved, पर अगर है वो ऊपर से कर्व, मतलब surface of the liquid is curved, and if concave surface is from upper side, then for the point of contact here, let see tangential force towards right, tangential force towards left, this is force due to surface tension। और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो पैरेललोग्राम निकालना पड़ता, रिजल्टेंट डायगोनल पे रहता, एंड दिस इज हाउ फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर सरफेस को फ्लैट करना है तो ये फोर्स डालना पड़ेगा, मतलब अब इक्विलिब्रियम में है तो इतना ही फोर्स ये ऊपर से नीचे डाले वाला है, जितना ऊपर हमको ये मिला है उतना ही फोर्स नीचे के डायरेक्शन में। एंड दिस इज व्हाई वी से प्रेशर is more from concave side than on convex side, so pressure on concave part is more than on convex part। now ये अगर प्रेशर, फिर से वही बात है, अगर लिक्विड का सरफेस बनता है कॉन्वेक्स अपवर्ड ऊपर से, फिर से हमको दो फोर्सेस मिल जाएंगे, टेंजेंशियल फोर्सेस सेम एज दैट ऑफ अर्लियर, पर इनका रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा नीचे, इसका मतलब है नीचे से प्रेशर ज्यादा है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप, दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल में सोचना है। सी आप लोगों ने टाइल्स पे एक आधा ड्रॉप गिरे हुआ देखा होगा क्या नहीं? हैव यू सीन आइदर ड्रॉप ऑन द टाइल्स, ऑन द फ्लोर? so see, let this is a drop formed on the ground। here let us consider one molecule of the drop, here red molecule। now it is under the action of three forces। one force, that is T1, this T1 force is the surface tension force between solid and liquid, TSL। कहां से? TSL। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं एक बार। अगर T1 है सरफेस टेंशन या फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि ये तो ग्राउंड है ना, इधर ये ग्राउंड है मतलब सॉलिड है। तो ये अगर सॉलिड है, टाइल्स है नीचे ड्रॉप के नीचे, तो T1 बन गया है सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, नाउ दिस T2, ये फोर्स भी उस ड्रॉप पर है, लेकिन ये कौन सा है? ये है सॉलिड एंड एयर के बीच में। देयरफॉर consider, do remember that T2 is equal to surface tension force between solid and air। don't say that TSL means T Sri Lanka, TSA means
T South Africa. It is solid liquid, solid air. Okay. Now what will be the T3? T3 will be surface tension force between liquid and air. अब देखो, अगर ये ड्रॉप ऐसे शेप में रहना है तो अपन कंसिडर करे वाला लिक्विड का मॉलिक्यूल बिल्कुल वही जगह रहना चाहिए. Considered molecule should be at rest. It means it should be in equilibrium condition. Therefore, for equilibrium condition, that see, this equation should be obtained. That equation should be obtained. लेकिन वो कैसे obtain होता देख लिए दोस्तों. ये दो फोर्सेस जो है एक तरफ से है, और T1 अकेला राइट साइड में है. इसका मतलब है T2, और देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या एंगल निकालता, लेट इट इज अल्फा. T2 प्लस T3 cos of alpha will be equal to T1. Agree? Will be equal to T1. Now, अगर आप लोग फिगर में देखेंगे तो ये अल्फा प्लस थीटा होता है 180 डिग्रीज. अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो अल्फा कितना? 180 माइनस थीटा. सो वी to T2 plus T3 cos of 180 minus theta will be equal to T1. Now cos of 180 minus theta is minus cos theta. आप लोग बोलेंगे ये कैसे आया? तो चलो मैं एक्सपेंशन करके बताता हूँ. एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ मैं. cos of 180 cos of theta माइनस साइन है तो ये यहाँ पे आएंगी प्लस. अब ये साइन ऑफ 180 इंटू साइन ऑफ थीटा. दोस्तों ये साइन 180 की कीमत तो पता होंगी ना. एज इफ साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू 0, सेकंड टर्म इज 0, सो वी विल इरेज इट. ओके. एंड cos of 180 is equal to -1. Therefore, we will say cos of 180 minus theta is equal to minus cos theta. If it is, we can write now equation. कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन लिखेंगे अपना जो आपकी फाइनल आने वाला है वो क्या है, वो देखो T2 प्लस T3 इंटू माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू T1 है ना. पर अगर T3 माइनस कॉस थीटा टर्म, मतलब माइनस T3 कॉस थीटा टर्म राइट साइड लेकर गए तो क्या इक्वेशन मिल जाएगा फाइनल हमारा? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos of theta. This is what the general form for equilibrium of a drop. फिर एंगल तुम्हारा ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो, आप लोग ये एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज आपके सामने एग्जाम्पल बोल के बता रहा हूं मैं, आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते. अगर ये मर्क्यूरी का ड्रॉप है तो ऐसा बनता. आपने कभी देखा होगा मर्क्यूरी का ड्रॉप, लेकिन आप लोगों को मर्क्यूरी का ड्रॉप नहीं पता तो आप लोग पानी का ड्रॉप या दूध का ड्रॉप टाइल्स पे डाल के तो देख सकते ना. हाँ, आई एम इरेजिंग दिस कंप्लीट एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू वन ड्रॉप हियर.
ये आपने कभी टाइल्स पे ऐसा एक मर्क्यूरी का ड्रॉप, सॉरी पानी का ड्रॉप गिरे हुआ देखा होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये है, और लेफ्ट साइड में तीसरा है, लेफ्ट साइड में तीसरा फोर्स। अब जो ये ऊपर की फिगर में फोर्सेस है ना, मैं वही ले रहा हूं। तो यहां जो अंदर है वो तो फिर से एक बार क्या, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ऊपर जो है वो सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, एंड लेफ्ट में है वो जो सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर। ओके, अब by the definition this angle is called as angle of contact. ओके, अब देखो मैंने अगर कंपेयर करें तो T1 के जगह क्या लिखा, TSL। TLA के जगह कौन है अपने फिगर में, T3 है। एंड T2 के जगह हमने कौन सा लिया, T साउथ अफ्रीका। ओके, चलो अब देखो, एक तरफ से है TSA और दूसरे तरफ से कौन है, दूसरे तरफ से है TSL प्लस TLA कॉस ऑफ थीटा। कोई एखादा बोलता होगा कि फिर TLA साइन थीटा क्या करता, TLA साइन थीटा क्या करता होगा। अरे भाई वो TLA साइन थीटा ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता। mg है ना मॉलिक्यूल का वेट, वो और TLA साइन थीटा कैंसिल करते, इसलिए हमें इक्वेशन मिला ये। अब देखो TSA के जगह मैंने कौन सा बात है अपने फिगर में, ओरिजिनल फिगर में वो है T1, सॉरी T2 है। TSA किसके जगह है, T2 के जगह है। अब वो जगह कौन है, TSL के जगह कौन है, देखो T1 है। TLA के जगह T3 है, एंड थीटा एज इट इज। क्या फिर ये भी इक्वेशन पहले जैसा ही है, देखो आपने ये यहाँ पे मछली बताई। हम्म सो whichever the shape of liquid drop, whether दिस सेकंड फिगर में जैसा है वैसा या फर्स्ट फिगर में जैसा है वैसा, मतलब एंगल ऑफ को एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, हमें इक्वेशन वही मिलता है। ये देखो ध्यान रखना है, लेकिन ये T1 T2 T3 क्या है जरा ध्यान रखो भला। अब ये मैं कॉस थीटा की अगर बात करता ना तो ऐसा लिख पाऊंगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। Do you remember? Yes, you have to remember this. Cos of theta is T2 minus T1 by T3. अगर T2 माइनस T1 पॉजिटिव है, T2 माइनस T1 पॉजिटिव है एंड T3 से कम है, कम तो रहना ही चाहिए, वो तो कम ही रहता, वो ज्यादा नहीं होता कभी भी। So but T2 minus T1 is positive, then angle of contact is acute. And if it becomes negative, T2 minus T1 अगर negative बनता तो angle of contact obtuse बनता। Do remember please. Now pressure difference inside the drop of liquid, we have derived this formula and we will not discuss here in detail. You know that अगर एयर एक तरफ से है तो प्रेशर डिफरेंस होता है 2T by R, एंड एयर दोनों साइड से है मतलब बबल है, सो बबल तो प्रेशर डिफरेंस है 4T by R. डू यू रिमेम्बर्ड? ओके, अब ये कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी भी बात हो गई इसमें हमारी। देखो ये राइज और फॉल फिनोमेना है, बस ये इट इज फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन। देखो अब ये
कंटेनर में एक लिक्विड भरा है, पर सरफेस अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो मतलब है एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है. इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट and this capillary tube is taken into that liquid. Now consider points A, B, C and D. A point है just above the concave surface and C point है just below the concave surface. It means into the liquid. B point और A point एक ही लाइन में है and C point and D point एक ही लाइन में है, लेकिन B and D points हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर नीचे है. किधर से? हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर नीचे से है. सी यहाँ पर ये ऐसी लाइन अगर निकाले तो एक ही लाइन पर है. ए एंड बी भी एक ही लाइन पर, मतलब एक लेवल पर है. लाइन पे मतलब लेवल पर है. पर ए पॉइंट है कॉनकेव साइड से, बी पॉइंट है कॉन्वेक्स साइड से. तो हमें पता है प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट सी एंड ए बी पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट्स एयर में एक लेवल में है तो उन दोनों का प्रेशर भी सेम है. बी पॉइंट एंड डी पॉइंट हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर नीचे है तो वो दोनों का प्रेशर भी सेम है. देखो देखो क्या क्या लिखेंगे हम. प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट सी. गॉट इट? बिकॉज प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ऑलवेज मोर देन ऑन कॉन्वेक्स साइड. अब प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. हमने देखा सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो प्रेशर डिफरेंस 0 होता, मतलब प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी एंड प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी आर इक्वल बिकॉज दे आर एट सेम लेवल इन द एयर. अब देखो, क्या मैं प्रेशर ए के बदले यहां पर प्रेशर बी लिख सकता एंड क्या प्रेशर बी को रिप्लेस करके मैं प्रेशर डी लिख सकता? तो क्या लिखना हूं मैं? प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट सी. अब अगर लिक्विड में एक ही लेवल में प्रेशर डिफरेंस होता तो वहां पे तो फ्लो बनता, लिक्विड फ्लोज, एंड दैट इज व्हाई लिक्विड फ्लोज फ्रॉम डी साइड टू सी साइड. कहां से कहां तक? डी साइड से सी साइड तक, सी साइड तक चले जाएगा लिक्विड. इसका मतलब है लिक्विड ऊपर जाएगा. कब तक? जब तक प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी इक्वल नहीं होते तब तक लिक्विड फ्लोज अप, ऊपर जाएगा, टिल प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी. हेंस लिक्विड फ्लोज अप. अब इससे क्या होगा? ये लिक्विड कॉलम का कुछ प्रेशर, इस लिक्विड कॉलम का कुछ प्रेशर डी पॉइंट सी पॉइंट पर चले आएगा. इसके कारण अब प्रेशर एट सी इंक्रीज्ड and it is now become equal to pressure at D. इसका मतलब है क्या है? अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गई, मतलब प्रेशर एट D एंड प्रेशर एट C इक्वल. प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B इक्वल भले नहीं हो, लेकिन लिक्विड, अब ये तो इतने छोटे से डिफरेंस से एयर में कुछ होता नहीं, समझे? तो अब ये सिस्टम पूरी इक्विलिब्रियम में आ गई. तो हम लोग ऐसा नियर अबाउट बोल सकते प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी इक्वल है, क्योंकि वो मिलीमीटर का फासला है. समझे क्या? तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. नाउ अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग जो लिक्विड एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बनाता है, वो लिक्विड हमने लिया. अब करें क्या? बात ही वही, प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट सी, है क्या नहीं? क्योंकि ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव साइड से, देखो कौन कॉनकेव साइड से है? सी कॉनकेव साइड से, और ये पॉइंट है कॉन्वेक्स साइड से. तो प्रेशर एट सी इज मोर देन प्रेशर एट ए और प्रेशर एट ए लेस देन प्रेशर एट सी. प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट डी इक्वल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ए एंड बी का प्रेशर भी सेम है क्योंकि एयर में एक लेवल पे है.
इसका मतलब है प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट D। तो प्रेशर एट D बनता है C से कम, हेंस प्रेशर एट D लेस देन प्रेशर एट C। तो इसका मतलब है एक लेवल में अलग अलग प्रेशर नहीं हो सकता, अगर हो गया तो लिक्विड फ्लो होता। कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? अभी अभी लिक्विड फ्लो होगा C से D। पहले केस में किधर से किधर था? इट वॉज फ्रॉम D टू C। नाउ इट विल बी फ्रॉम C टू D, and that is why liquid level goes down till pressure at D becomes equal than pressure at C। सो ये लिक्विड लेवल अभी कम हो गई है अपनी, ध्यान देखो इधर। गॉट इट? सो प्रेशर C पर और प्रेशर D पर सेम हुआ क्योंकि लिक्विड लेवल कम हो गई। आप लोगों को देखना है तो प्रैक्टिकल करके देख सकते। टेक एनी टूथपिक or any small just as a refill from your ball pen and dip in oil or polished by any grease material। कौन सा भी एक आधा ऐसा ऑयल ले लो, उसमें डुबाओ और फिर आप पानी में डुबाओ, तो आप लोगों को ध्यान में आएगा कि वो रिफिल के आजू बाजू में चारों तरफ से पानी की लेवल कम हो गई। तो यही है कैपिलैरिटी एक्शन। दोस्तों ये फाइनल फॉर्मूला था अपना, जो फाइनल फॉर्मूला है क्या आया था, याद है क्या नहीं? आया तो होना चाहिए, T इज इक्वल टू एच रो जी इंटू आर कॉस ऑफ थीटा, सॉरी बाय 2 कॉस थीटा, है ना। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एच आर रो जी और आर एच रो जी बाय 2 कॉस थीटा। और अगर हमने कैपिलरी वो मिनिस्कस के अंदर जो लिक्विड है वो अगर कंसिडर करा तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो आया तो याद है क्या? याद अगर नहीं है तो मानो तुम्हारी स्टडी कम है। सो ये फॉर्मूला है कौन सा? आर रो जी इन ब्रैकेट एच प्लस आर बाई 3 अपॉन 2 कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों देखो ये आंसर सब मिल गया अभी। हाउ डू दिस स्ट्राइडर वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? बिकॉज एक तो उनका वेट बहुत कम होता है, बात मानते हैं, लेकिन ये जो लिक्विड सरफेस है ना वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बोल के एक्ट होता है, और दैट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन is able to balance the weight of that spider। So it is on the basis of surface tension phenomena। दोस्तों सरफेस टेंशन की डिफिनेशन आप लोगों को डिप फोर्स के बारे में और इंक्रीजिंग एरिया के बारे में मालूम है, वो याद रखो ये सारे के सारे डेफिनेशंस। और ये वर्क डन का फॉर्मूला याद है, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। सी अगर हमने ऐसा एक ABCD शेप में एक अपना स्लाइडर रखा है, स्लाइड होने वाला स्लाइडर, क्या PQ इज अ स्लाइडर, स्लाइड जो हो सकता वो स्लाइडर। नाउ वी नो दैट दिस लिक्विड कौन सा, ये ब्लू वाला, दिस लिक्विड does exert force on this PQ slider into the liquid, है ना। अगर ये लिक्विड में फोर्स है तो ये PQ तो अंदर जाएगा, लेकिन अगर इस फोर्स के अगेंस्ट हमको इस स्लाइडर को राइट साइड अगर लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मिनिमम उतना ही फोर्स डालना पड़ेगा। अगर ज्यादा लगाए तो एक्सेलरेशन होगा, हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। कम लगाए तो जाएगा ही नहीं। ज्यादा लगाए तो एक्सेलरेशन होगा जो हमें नहीं चाहिए, कम लगाए तो राइट साइड स्लाइड होगा ही नहीं। इक्वल लगाए तो विदाउट एक्सेलरेशन उधर चले जाएगा। इसका मतलब है हमारा स्लाइडर का न्यू पोजीशन बन गया है P1Q1, और अपनी ये जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है ना वो बनती है, ये देखो मैं रेड से मार्क करने जा रहा हूं, इतना एरिया इंक्रीज्ड हुआ। सो
work done by our applied force is equal to force into displacement, and therefore F into dx, पर F कितना, surface tension into length, पर length कितनी, that length is the length of contact with solid, liquid and air. सॉलिड लिक्विड एंड एयर के बीच में जितनी लेंथ है वो लेंथ है, पर यहाँ तो बाहर के साइड से, मतलब अपन देखते वो उस साइड से लेंथ यल है और अपने अपोजिट साइड से भी लेंथ यल है, इसका मतलब है ट्वाइस यल हुई लेंथ इन कांटेक्ट। अब 2l इंटू dx, व्हाट, 2l इंटू dx, ये तो हो गई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपने साइड से, उधर के साइड से भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये सरफेस टेंशन तो है ही, देयरफॉर दिस 2l dx becomes change in area। सो डेफिनेशन बन गए, देखो, मैकेनिकल वर्क stored in the form of potential energy in stretching the film and it is called surface energy। now ये work done in breaking a drop into the r radius in n drop, देखो अगर ये बड़ा रेडियस है, बड़ा ड्रॉप है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इफ इट इज ब्रोकन इनटू n ड्रॉपलेट्स, अभी ये n ड्रॉपलेट्स बन गए हैं, तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया या कम हुआ, यू हैव टोल्ड मी इन द क्लास दैट ये सरफेस एरिया बढ़ गया है, कितना बढ़ा, वो बढ़ने से हमें पता चलता है कि वर्क कितना हुआ, ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई। सो ये सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया है n इंटू 4πr², तो इनिशियल एरिया था 4π इंटू कैपिटल R स्क्वायर, और फाइनल फॉर्मूला आप लोगों को ये आया था n के भाषा में। अगर कोई कैपिटल R कॉमन ले लेता, तो कैपिटल R अगर कोई कॉमन लेता तो फॉर्मूला बनता है 4π कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल T n raised to 1/3 minus 1। हैव यू रिमेंबर, हैव यू रिमेंबर्ड? बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये या ये भी। अगर उल्टा होता तो n ड्रॉपलेट्स मर्ज करते, कोलेस करते इनटू अ ड्रॉप, तो फिर कितना वर्क करना पड़ता, मतलब एनर्जी कितनी रिलीज होती, वर्क कौन करेगा, लिक्विड करेगा, मतलब एनर्जी एनर्जी लिबरेट होंगी यहाँ पर। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि चेंज इन सरफेस एरिया तो ब्रैकेट टर्म है, चेंज इन सरफेस एरिया तो ब्रैकेट टर्म है, एंड सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया बिकम्स वर्क डन। तो आप लोग अगर कैपिटल आर बाहर निकालते थे, देखो ये देखो फॉर्मूला नया आ गया जो कि मैंने पहले लिखा था। सो वी हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर और कैपिटल आर। दोस्तों लास्ट बात है इस सरफेस टेंशन के पार्ट में, इम्प्योरिटी का असर क्या होता, व्हाट डज दिस इम्प्योरिटी अफेक्ट। इम्प्योरिटी प्रोड्यूस चेंज इन सरफेस टेंशन, पर कौन सी इम्प्योरिटी कैसा चेंज करती, इफ हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब लेट NaCl जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक है ना, तो वो सब्सटेंस अगर डाले तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता, मतलब सॉल्युबल सब्सटेंस अगर डिसॉल्व करे तो लिक्विड का सरफेस टेंशन इंक्रीज होता, और पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस डाले तो, पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस डाले तो इसका मतलब कौन सा, लेट अपनी डिटर्जेंट पाउडर, कभी देखा है क्या डिटर्जेंट पाउडर पानी में डालने के बाद वो पूरी 100% डिजॉल्व होती नहीं, नहीं देखे, फिर देख लो, वीडियो पॉज करो, पहले निरमा पाउडर ले लो, कौन सी भी डिटर्जेंट पाउडर ले लो और पानी में डालो, आप लोगों को ध्यान रहेगा अरे यार थोड़े से कंकर तो बचते हैं, the smallest particle remains from this dissolve, तो ये डिजॉल्व होते ही नहीं,
Hence, detergent powder is used to wash clothes because it decreases surface tension. अगर डिक्रीज हुआ surface tension तो वो जो लिक्विड है मतलब अपना पानी है, सोप का पानी है, डिटर्जेंट का पानी है, वो अपने कपड़े के धागे के अंदर तक जा सकता और वहां पे जो डस्ट बैठी है उसको डिजॉल्व करके अपना कपड़ा साफ हो जाता। दोस्तों, अगर अपने पास डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो कभी पता है क्या करते हैं घर में? कपड़े अगर धोना है, डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो दिस इज बेस्ट सॉल्यूशन टू टेक हॉट वाटर, क्योंकि वी नो दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस और कम सरफेस टेंशन वाला लिक्विड कपड़े धोने काम आ जाता। सो दिस इज हाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस। दोस्तों, कि देयर आर एक्सेप्शंस। मोल्टन कैडमियम एंड मोल्टन कॉपर जो है ना, इनका टेम्परेचर बढ़ाए तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता। दैट सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बाकी सारे लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है वो कम होता टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। सो सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड्स वैनिशेस एट सम टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। ध्यान रखेंगे हम लोग। दोस्तों, ये लड़कियां जैसे टेंशन में दिख रही है वैसे टेंशन में आना नहीं। भले ये लॉकडाउन का पीरियड है, हम लोग बिल्कुल कुछ दिनों के बाद क्लास में मिलने वाले ही है, इसलिए बगैर टेंशन का बिल्कुल ये वीडियो खत्म होते ही हाई जंप ले लेना। क्या करना? बिल्कुल हाई जंप ले लेना, रिलैक्स होना, रिलैक्स होके आई कैन डू इट, आई विल डू इट बोलना और इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहना। ओके, थैंक यू।